God is faithful, और आज हम उसी के बारे में and we are going to learn about that today. परमेश्वर विश्वास योग्य है Is He faithful हमारे जीवन में, in our lives हम एक दूसरे के जीवन में, and we in each other's lives? चाहे हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, Whatever would be our level of strength, चाहे हम कितने भी परमेश्वर से दूर क्यों ना हो, however weak and far away we may be from God, चाहे हम परमेश्वर के लिए जिए भी ना, and even if we do not live for Him, लेकिन वो विश्वास योग्य but He is faithful. है। वो हमसे रिमेन, वो बता प्रेम करता ही रहता है, He would continue to love us. इसलिए वो उस हद तक आया है, And that is the reason He came to this extent. जहाँ तक वो जा सकता है उससे कहीं गुना आगे बढ़ के उसने हमसे प्रेम किया। And He has gone beyond we could have, which He could have gone for. वो विश्वास योग्य है। He is faithful. सो हम अपने स्थान पे खड़े होंगे, आप लोग Let's stand in our places. वचन पढ़ेंगे, एक वचन है And we are going to read from the Word. और पौलुस जब कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है Paul is writing to the Corinthians, ना, जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, where there are lots of problems and there are issues. हम समस्याओं की ओर नहीं जा रहे, We are not going to look at the problems and the issues. लेकिन पौलुस क्या कह रहा है But what is Paul saying? इस एक वचन के द्वारा? By this single verse, वो ये बता रहा है he is telling. कि परमेश्वर, पहला कुरिन्थियों का 1:9, We are going to go to 1 Corinthians 1:9. परमेश्वर विश्वास योग्य सच्चा है, मतलब विश्वास योग्य है, जिसने तुमको हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. परमेश्वर विश्वास योग्य है। That God is faithful. विश्वास योग्य परमेश्वर Faithful God, हमारे साथ है He is with us. ना, इमैनुएल, Emmanuel, परमेश्वर हमारे साथ है God with us. ना, वही विश्वास योग्य है। And He is faithful. And only He is faithful. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। Father God, we thank You for this time. हम तेरे पास आते हैं We come to You, O Lord, और तुझसे मदद चाहते हैं and we want help from You, O Lord. क्योंकि ये घर तेरा है Father, this is Your house, और ये मंदिर तेरा है। and this is Your temple. इस भवन को बनाने वाला तू है। And the one who would make this house is You, O Lord. चार दीवारों से घर नहीं बनता, Father, four walls do not make a house, O Lord, बल्कि एक परिवार से घर बनता है but a family makes a house, O और Lord. उस परिवार का मुखिया, उस परिवार का मुख्य व्यक्ति आप हो प्रभु, And You are the head of that family. और वही घर हमेशा बना रहता है। And that house abides forever. जिस घर में तेरी उपस्थिति है, And wherever You are, O Lord, जिस घर में तेरा सामर्थ्य है, and where Your presence and Your strength is there, O Lord, हम मांगते पिता, Father, we ask, O Lord, आज भी हम उस विश्वास योग्यता को देख सके। and we can, today also we can see Your faithfulness, O हम Lord, आपसे मदद चाहते हैं, and we ask for help from You, O पवित्र Lord, आत्मा की सामर्थ, and in the Holy Spirit's power, O Lord. यीशु मसीह के नाम से आमेन। And in Jesus' name we ask, आप लोग बैठ Amen. सकते हैं। You can sit. सो विश्वास योग्य परमेश्वर, So, faithful God, विश्वास योग्यता का अर्थ क्या है? what do we mean by जब हम faithfulness? विश्वास योग्यता बोलते, परमेश्वर विश्वास योग्य है, When we say that God is faithful, इसको दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं। we can divide it in two words. विश्वास The first word is faith और पूर्णता। and full. ना, हमारे पास We have परमेश्वर के विश्वास की पूर्णता है the fullness of God. ना, परमेश्वर के विश्वास की पूर्णता है। We have faith, a fullness of faith on God. ना, विश्वास योग्य ना, बोलता है इब्रानियों का 12:2, And if we see Hebrews 12:2, ना, वो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता है that He is the author and finisher of our faith. ना, वहाँ पे ये कहता है And that is what He says there. हमारे अंदर That in us, जो हमारे पास विश्वास है the faith which we have, वो उसकी सामर्थ and that is His power, और उसकी अगुवाई का क्या बोलता है, गवाही देता है and it shows that He is leading us. ना, उसके सामर्थ में मैं अगुवाई किया जा रहा हूँ That I am being led by Him in His strength, और उसके सामर्थ में मेरे जीवन में कार्य हो रहा है and there is work going on through
my life. कहने का मतलब वो विश्वास योग्य है, And it means that He is faithful. क्योंकि उसकी सामर्थ मेरे जीवन में है, Because His strength or His power is in my वो life, विश्वास योग्य है। He is faithful. और वो उसकी अगुवाई मेरे जीवन में है, And because His leading is in my life, वो विश्वास योग्य है। He is faithful. हम लोगों ने एबीडी क्लास किया वेडनेसडे का, बहुत अद्भुत था वेदर। And this Wednesday when we did the ABD, it was amazing. ना वो दाऊद के बारे में बात करता है, And he talks about David, ना जहाँ पे उसने शत्रुओं के बारे में नहीं सोचा, where he didn't think about his enemies, उसके हालातों के बारे में नहीं सोचा, he didn't think about his circumstances, उसने विश्वास में विश्राम किया, he rested in his faith. ना उसने विश्वास की अच्छी नींद वैसे सोया है। And he slept a faith rest. ना उन्होंने डॉक्टर स्टीवन ने अच्छा बोला, खर्राटों की डॉक्ट्रिन, खर्राटों का सिद्धांत। And Dr. Stevens called it the doctrine of snoring. ना खर्राटे लेने वाला, राइट? So someone who snores. ना जहाँ पे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, So it didn't matter to him. ना खर्राटे लेके सोने वाला व्यक्ति, उसको प्रॉब्लम नहीं होती, बाजू वाले को तकलीफ होती है। So the person who snores creates trouble for others. लेकिन क्या कर रहे हैं वो जो खर्राटे ले रहा है वो आराम से सो रहा है। And the one who's sleeping or snoring is sleeping very nicely. परमेश्वर विश्वास योग्य है, God is faithful. ये कहते हुए वो आराम से सो रहा है। And saying that, he slept मेरे beautifully. पास किसी चीज की चिंता नहीं है, And he doesn't worry about anything. और उस वचन पे वो मनन कर रहा है And he is meditating on the word. कि परमेश्वर खूबसूरत है, उसके वादे खूबसूरत है। That God is beautiful and His promises are beautiful. और यहाँ पे पहले कुरिन्थियों में भी वही चीज कहता है, And that is what is said in 1 Corinthians. परमेश्वर सच्चा है, That God is faithful. उसके अंदर कोई भी ना झूठ नहीं है, There is no error in Him. वो विश्वास योग्य है। He is faithful. मतलब हमारे पास उसका विश्वास की पूर्णता है And that means we have fullness of His faith. ना, मतलब परमेश्वर के लोग कई बार ना जो विश्वासी जीवन में विश्वास में नहीं जीते, क्योंकि वो उस विश्वास योग्यता को सही तरीके से नहीं समझते। And many times a believer can live without that faith because he doesn't know that God is faithful. ना इस बाइबल में के हर व्यक्ति के बारे में तो जानते हैं, They know about every person in the Bible. मैं अब्राहम को जानता हूँ, I know Abraham. मैं उसके ना याकूब को जानता हूँ, I know Jacob. ना मैं इसहाक को जानता हूँ, I know Isaac. मैं पौलुस को जानता I हूँ, know Paul. लेकिन मैं उसके जीवन के उस गहराई को नहीं समझ पा रहा हूँ, But I am not able to understand the depth of his life. क्योंकि उस विश्वास योग्यता पे हम संदेह करते कई बार Because we always doubt his faithfulness. ना, कई बार सोचते हैं हमारे पास बाइबल है भाई, All of us have Bibles. लेकिन हम संदेह करते हैं But we doubt उसकी विश्वास योग्यता, on his faithfulness. इसलिए हम कई बार विश्वास में जी नहीं पाते। And that is the reason many times we are not able to live in faith. हम कहते हैं विश्वास से विश्वास के लिए हमारा जीवन है, And we know that for faith and through faith is our life. हम ये भी कहते हैं धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, And we know that a righteous man will live by faith. लेकिन उसकी विश्वास योग्यता को नहीं समझ पाते। But still we do not understand his फिर faithfulness. भी वो खूबसूरत है, And yet he is beautiful. फिर भी मैं ये कहूँगा वो खूबसूरत है, And yet he is beautiful. क्योंकि वो विश्वास योग्य है, Because he is faithful. विश्वास योग्य। Faithful. चार्ल्स स्पर्जन कहता है Charles Spurgeon says, जो सच्चा विश्वास है the real faith, ना, जो सच्चा विश्वास है the real faith जो स्वर्ग से हमें दिया गया है, which has been given to us from heaven, क्योंकि वो स्वर्ग से इस दुनिया में भेजा गया और वो जन्मा है, because it's been sent from heaven and is born, और उसे हम ग्रहण करते हैं और उसे हम थामे रहते हैं। and we receive it and we continue to hold ना, on. सच्चा विश्वास क्या है? And what is that true faith? उस जन्मे हुए विश्वास को क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन में ग्रहण किया है, और अभी उसे क्या करना है, थामे रहना है। And the faith which was born, we have received it and now we have to hold on to it. ना सोच सकते, मतलब हम जहाज जैसे एक समुद्र में तैर रहा है, जा रहा है, It's somewhat like a ship is sailing in the sea. जो जहाज में काम करते हैं ना, उनको पता है People who have sailed know, ना, लेकिन वो स्थिर रहते हैं उसमें and they continue to abide or they stay steady in it. ना, उसमें बने, उसमें रहना, And to continue be there हाँ, उस जहाज के अंदर है हम, in that ship, उसके विश्वास और उसकी पूर्णता के अंदर। and in his faith and his completeness. और एक कहानी है, एक घटना
So there is one incident यशाया में in Isaiah. ना 36 और 38वें अध्याय अगर आप जाएंगे वहाँ पे पढ़ेंगे ना अशूर के राजा ने क्या है रबशेकत को भेजा है, राइट, आक्रमण किया है उसने And यरूशलेम पे। we see in 36th chapter that there is an Assyrian king who has attacked them. ना जहाँ पे उसने सेना भेजी, And he sent his army. बहुत बड़ी सेना का, It was a very big ना army. 185,000 आई थिंक वो लगभग रह सकते हैं। There were 185,000 people in that. और यहाँ पे यशाया का 36:5 बोलता है, And 36:5 in Isaiah says, बोलता है 36:5 बोलता है कि मेरा कहना है कि क्या मुंह से बातें बनाना ही युद्ध के लिए पराक्रम और युक्ति है, कि किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है। and he says, I say, you speak of having counsel and strength of war, but they are vain words. Now in whom do you trust? ना ये कौन कह रहा है? रबशके कह रहा है, किसको कह रहा है? हिजकिय्याह राजा को कह रहा है। So this king Sennacherib, I think in Hindi, English it's हिजकिय्याह। yeah. So he says to Hezekiah, ना जहाँ पे चौथी पंक्ति में आप देख सकते हैं, and we can see in the 4th verse, बोलता है महाराजा धीराज अशूर का राजा यो कहता है कि तू किसका भरोसा किए बैठा है। then the Rabshakeh said to them, say now to Hezekiah, thus says the great king, the king of Assyria, what confidence is this in which you trust? लेकिन हिजकिय्याह का जो भरोसा है उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे आगे तो वो खुद कहता है कि तू मिस्र के राजा से ना क्या बोलते संधि करके बैठा है। And if we see Hezekiah's faith, that he says that you have actually made ties with the Egyptian king. आगे जाके आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। And you will read it ahead. If you go ahead, you will find it. मतलब दुश्मन ये कहने की कोशिश कर रहा है, So the enemy is trying to say, लेकिन दुश्मन ये भी कहता है but the enemy also says, ना जिस यहोवा का तू भरोसा करता है उसके लोगों को भी मैंने जीत लिया है पहले। and he is trying to say that the God or Jehovah whom you trust, I have won over his people also. लेकिन जब दुश्मन हमारे पास आते तो हमारा रिस्पॉन्ड क्या होगा? So, but what would be our response when the enemy comes to us? ना यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्ड ये होना चाहिए, Our response should be this, ना परमेश्वर विश्वास योग्य है, that God is faithful जिस पर हम भरोसा करते हैं। and on whom we trust. ना मतलब कहने की बात ये है, So this is what we need to say, हमारा पूरा भरोसा उस पे रखा है हमने, and we have kept our complete trust on Him, और उसी पर हम भरोसा रखेंगे and we would continue to keep our complete trust और on Him, हमेशा उस पर भरोसा रखते रहेंगे, and we would continue to do so, चाहे कितना भी चीजें होना वो whatever happens in our life, ना, क्योंकि विश्वास से ही उसको प्रसन्न किया जा सकता है। because we can please Him only through faith. ना परमेश्वर सिर्फ हमारा विश्वास चाहता है, God wants only our faith, लेकिन वो विश्वास चाहता है जो उसने हमें दिया है। but He wants that faith which He has given to ना हम us. जब विश्वास करते हैं तो हम थोड़े समय के लिए वो विश्वास क्या है कई बार डगमगा जा सकता है, So when we believe it, we can stumble at times, लेकिन उस विश्वास को लेकर चलो but continue to take that faith जो भरोसा रखने वाले ईश्वर पे है, which is on the God who is trustworthy ना जो ये कहता है and who says this, कि परमेश्वर भला है, that God is good, परमेश्वर दयालु है। God is merciful. यदि क्या होता अगर वो नहीं रहता, If He wasn't there, what will happen? यदि क्या होता कि वो हमसे प्रेम ही नहीं करता, If He didn't love us, then what would happen? लेकिन उसके चरित्र और गुणों में वो चीजें नहीं है कि वो हमसे धोखा करे, But it's not in His character that He would not love us, क्योंकि परमेश्वर के गुणों में ही वो क्या है सब कुछ है, because in His attributes we find वो everything. संपूर्ण है। He is complete, हाँ, और वो वैसा परमेश्वर है and that is the kind of God He is. ना, उसका प्रेम, उसकी भलाई, उसका जो क्या बोलते हैं उसकी दयालुता, उसके विश्वास योग्यता के उस गुणों से जुड़ा हुआ है, And His compassion and His love is joined to His faithfulness. ना परमेश्वर विश्वास योग्य है, God is faithful. ना हम उसकी विश्वास योग्यता की उस सोच को जब हम लेते हैं And when we take this thought of His हमारे faithfulness जीवन में, हमारे माइंडसेट में, in our mindset, ना जो सच्ची राइट आराधना क्या होगी पता है? and you know what would be the true worship? रोमियो का 12
Romans 12:1. ना मैं सच्ची आराधना करना चाहता हूँ, I want to worship Him truly, लेकिन उसकी दया को याद करते हुए। but remembering His mercifulness. रोमियो का 8:28, And if we go to Romans 8:28, मैं उसके भलाई को देखना चाहता हूँ, I want to see His goodness, लेकिन जो उससे प्रेम रखते हैं, but only those who love Him ना जो जानते हैं, and who know Him, ना उसने हमें बुलाया है, that we are called by Him. उसका जब हम वो सोच हम रिसीव करते हैं कि When we- परमेश्वर विश्वास योग्य है, When we receive that thought that God is faithful, उस वक्त हमारे जीवन में ये जीवन जीने लगता है, and then this life starts in us, और वो सेवा कर सकता है, and which can serve, वो आराधना कर सकता है, which can worship, जो ये कहता है who says this, परमेश्वर विश्वास योग्य है। God is faithful. ना अभी गाना गाया हमने, We just sang a song अब्राहम का प्रभु, that He was Abraham's ना God, इसहाक का प्रभु है, Isaac's God, वो मेरा है। and He is मैं सोच mine. रहा था, बार बार वो वर्ड आ रहा था, And every time the word was being repeated, वो मेरा है, that He is mine, वो मेरा है, He is mine, वो परमेश्वर मेरा है, and that God is mine, ना कह रहा है, and He's telling. अद्भुत है ये। It's amazing. लेकिन जब समस्याएं होती है, But when problems are there, हालातें होती है, and there are circumstances, ना उस समय में जो हमारा विश्वास डगमगाता है, and in those times when our faith is disturbed or is moved, तो वो विश्वास कौन सा है? then what kind of faith is it? वो यीशु मसीह से दिया हुआ विश्वास नहीं होता, It is not faith given by Jesus Christ. वो जो डगमगाने वाला विश्वास है, The faith which wavers जो थोड़े समय के लिए होता है, and which happens for a short time, क्योंकि हालातें आएंगी। because situations will come. तब ना वहाँ पे जब यीशु मसीह के साथ चेले थे, उस जहाज में थे, क्या बोल रहे थे? हे प्रभु हमें बचाओ ना, हम मर रहे। And we remember that when His disciples were in the boat, they said, God, please save us, we are dying. ना यीशु मसीह क्या बोलता है? हे अल्पविश्वासियों। But what did Jesus say? He says, "Oh, you of little faith." ना अल्पविश्वासियों कहा है बाप। He calls them people of little faith. क्या तुम्हें थोड़ा भी विश्वास नहीं है Don't you have even a little कि faith मैं वहाँ पे हूँ? that I am right here? ना विश्वास करने वाले को चाहिए कि वो है, And the person who believes should believe that He is, वो विश्वास से ही प्रसन्न होता है। because He is pleased with faith only. ना हमारे पास ज्ञान तो है, We have knowledge ना हमें सही समझ भी पता है, and we have understanding also, लेकिन हमने विश्वास योग्यता को कबूल नहीं किया है। but we haven't accepted faithfulness कबूल करना to accept that कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। that God is faithful. वैसे हर स्थिति हालातों से हम जाते हैं, वैसे हमारी कमजोरियाँ, वैसे डेविड को सब पता है And we know that we go through so many situations. ना, वो 6000 साल का उसको एक्सपीरियंस है भाई, And he has 6,000 years experience, लेकिन वहाँ पे क्या है, हमारा एक जीवन है and we have a life there, जो यीशु मसीह के साथ में है। which is with Christ. उसे कबूल करो, Accept that वो विश्वास योग्य है। He is faithful. यशाया का 36 And we go to Isaiah 36, ना, जहाँ पे उस हिजकिय्याह के पास में क्या है, उस जगह पे रबशके आया है and Rabshakeh has come to Hezekiah. ना, लेकिन हिजकिय्याह ने क्या किया था वहाँ पे, मतलब वो घटना क्या है, But what was the incident here? वो यहूदा की सुरक्षा के लिए तैयारी कर रहा है He is preparing for the protection of Judah. ना, जब मिस्र से वो रक्षा के लिए क्या है, उसकी सुरक्षा से संधि करता है, And he makes ties with people from or with the king of Egypt. ना दूसरा राजा 18 में भी ये इंसिडेंट है, सेम चीजें लिखी है। And if you see in 2 Kings 18, the same incident can be found वो there. सोचता है मैं मिस्र से मिल जाऊंगा तो मैं क्या है, सफलता पा लूंगा, And he thinks that if I join with Egypt, I'll be successful. लेकिन यशाया उसके खिलाफ है। But Isaiah is against that. ना, यशाया क्यों खिलाफ है? Why is he against that? क्योंकि यशाया से परमेश्वर बात कर रहा है Because God is talking to Isaiah. ना। अगर 30 में जाएंगे, If we go to 30, बोलता है वहां पे, बोलता है जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, and they make strategies, but they are not from me. वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। They make covenants, but they are not taught according to my spirit. क्या उस नकली विश्वास में जीते हैं They live in that artificial faith. ना, वो युक्ति तो कर रहे हैं। They make strategies. कई बार चीजें बदलती है तो हम
कई बार हमारे सोच के आधार पे सोचने लगते हैं So when things change, we start thinking according to our own thoughts. हम कैसे इसे हैंडल करें, Then how would we handle this? लेकिन हम हैंडल नहीं कर सकते। We cannot handle these. लेकिन क्या वो परमेश्वर की ओर से है? Is it from God? क्या वो परमेश्वर से हमने सलाह मांगी थी? Did we consult God before this? कभी ऐसा होता है, यस, कई बार होता है। And many times it happens. लेकिन एक चीज है, But there is one thing, ना परमेश्वर की आत्मा से हम चलाए चलते हैं। that we should walk according to His Spirit. अगर नहीं है If it's not there, तो हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, then we are deceiving even ourselves. नकली विश्वास में जीते हो। And we are living in that यस, artificial मैं faith. विश्वासी हूँ, Yes, I am a believer, लेकिन मैंने उसको ग्रहण नहीं किया। but I haven't accepted Him, received Him. His thought. राइट, जैसे खेत में एक नकली पुतला लगाते हैं As we put that scarecrow in fields, ना, क्यों? उस पक्षियों को भगाने के लिए। just to shoo away those birds. लेकिन क्या होता है, नकली है, थोड़ा डराता है So though it is artificial and though for a time it can scare, ना, वो डरा सकता है लेकिन हरा नहीं सकता so he can scare but he cannot defeat. ना। क्या वो हरा सकता है उसको? Can he defeat it? नहीं हरा सकता। No. लेकिन हमारा विश्वास अद्भुत है। वैसे दूसरा So our faith is amazing, जो विश्वासियों को दिया गया है which has been given to believers. ना, नकली विश्वास थोड़े समय के लिए रहेगा, The artificial faith will remain for some time, नॉलेज के आधार पे, हमारे ना अनुभव के आधार पे। which is based on our knowledge and our experience. लेकिन आज इस वर्तमान में मैं किस विश्वास में जी रहा हूँ, But in today's time, in which faith am I ये मायने operating? रखता है। This matters, वो विश्वास योग्य है, and He is faithful. ये समझना। To understand that, ना, विश्वासियों के लिए वो परमेश्वर की संपूर्ण राइट अगुवाई करने वाला विश्वास दिया है and that is the faith which leads us. ना, वो संपूर्ण है It is complete और वो हमारी अगुवाई भी करता है and it leads us to ना इस वर्तमान जीवन में। in our और इस lives कहता है now. वो हमारा विश्वास सक्रिय है, एक्टिव फेथ बोलता है जिसे And Paul calls it active faith. ना। उस एक्टिव फेथ में, उस सक्रिय विश्वास में जियो So live in that active faith. ना। आज कितने लोग हैं जो गाड़ी चला के आए बिना पेट्रोल के? How many people came here without petrol? ना, वैसे सीएनजी भी है There is CNG. ना। कितने लोग ऐसे आए How many people have actually come like that? नहीं चला सकते You cannot. ना, आपको उसमें पेट्रोल डालना ही है। You have to put petrol. सक्रिय बोलते हैं, जैसे एक्टिव रखना है And we have to keep it active. ना। हर दिन हमें एक्टिव रहना है And we have to be active. यार, थोड़ा कठिन होता है, हम इंसान हैं, वैसे हाड़ मांस से बने हैं, थोड़ा सा तकलीफ होती है कई बार। We are flesh and blood and we are human, so sometimes we get into trouble. लेकिन तुरंत आप उस ज्ञान के आधार पे मत जाओ, But do not go on your knowledge. तुरंत आप उस जगह पे मत जाओ जहाँ पे हमको ना आसानी से सब कुछ मिल सकता है। Don't go to a place where everything is very easy to find. ना, कई बार हम वैसे खोजते हैं, वैसे हम इंसान हैं, वैसे कई बार कुछ होता है तो जहाँ पे आसान होता है वहाँ पे जल्दी भागते हैं। So many a times we look for easy answers, easy way out. थोड़ा विश्वास थोड़ा कठिन हो जाता है फिर। So at that time our faith has to be, it becomes difficult. तो फिर संदेह में आता है, And then it comes into तो doubt. विश्वास योग्यता को भूल जाता है। And we forget His faithfulness. जरूरी है कि विश्वास योग्य परमेश्वर को अपने जीवन में जगह देना। It is important to give place to faithful God in your life. मैं उसे सिद्धांत को जान रहा हूँ, I know His doctrine, लेकिन उसके अंदर उस सिद्धांत के उसके गुणों को भी और करीब से जानना चाहता हूँ। but I want to know His attributes even closely. आज हमने सीखा Today we learned परमेश्वर प्रेम है। that God is love. जब मैं घर में गया When I went home, ना, पत्नी से झगड़ा कर दिया then I fought with my wife. ना, परमेश्वर प्रेम है God is love. ना, उसने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि सब कुछ दे दिया। He loved us so much that He gave everything to us. पत्नी के लिए थोड़ा सह नहीं सकता, So can't I tolerate a little जस्ट bit? कह रहा हूँ, मतलब चीजें, मतलब कई बार ऐसा जीते हैं। Many times we live like that. हाँ, लेकिन हमें जो विश्वास दिया है संपूर्ण है। But the faith which has been given to us is ना, complete. मतलब पेस्टियो उसका ना शब्द है, पेस्टियो The word used for that faith is pestio. ना, जो परमेश्वर से मिला हुआ एक क्या बोलते हैं ना विश्वास है, And it is given by God to us. वो That एकदम faith. खास है।
And it is very special. वो इसलिए खास है And it is special क्योंकि उसके अंदर अधिकार है because there is authority in it. ना। यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं And we say in Jesus' name. ना, एक ना बंदा बीमार है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई पा जाए। And we say, if someone is sick, we say in the name of Jesus he should get उस healing. खास विश्वास के द्वारा दिया गया अधिकार है। So it is this faith given by that ना, authority. विश्वास करना And to believe उस विश्वास योग्य परमेश्वर पे, on that faithful God. हालांकि कुछ भी हो पहले, Whatever the ना circumstances वो may be, बिगड़ती हो या अच्छी हो, they may be good or they may be bad. वो विश्वास योग्य है, He is faithful. वो विश्वास योग्य है। He is faithful. वो हमारी अगुवाई करना जानता है। And He knows how to lead us. हमें उसका सिर्फ समर्थन करने की जरूरत है। We just have to agree with Him. ना क्या बोलते हैं, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे कई बार And we say पीछे that you move ahead, we'll follow you. ना, कई बार लीडर आगे जाता है As the leader leads, ना, तुम आगे बढ़ो हम है, and we say that you कुछ go होता ahead. है, लाठियां चलने लगती है, And then there are, there is something meeting going वो चला on. जाता है, जो उन्होंने घोषणा की है वो निकल जाता है, वो निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। And whatever they had declared, they forget it and they run away. थोड़ा समय के लिए रहता हो, And it happens only for a लेकिन परमेश्वर का For some विश्वास time. वैसा नहीं है। But God's faith is not like that. अगर तूने मेरी विश्वासयोग्यता पे भरोसा किया है, And if you have believed in my faithfulness, मैं तुम्हारे हर स्थिति हालातों में हर जगह पे मैं वहाँ पे रहूँगा। I would be there in all your circumstances. इसलिए वो वचन कहता है, And that is what the word मैं says. तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, And that is why the word says that I will never leave you or forsake you. क्योंकि वो विश्वास योग्य है। Because He is faithful. Right, ये समझना, And to understand that. विश्वासी के अंदर वो जीवित है। वैसे And in a believer it is alive. आपके अंदर जीवित है? Is he alive? Yes, Yes. yes, yes, right? मेरे अंदर विश्वास जीवित है, In me, the faith is alive. क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, Because Jesus is alive वो विश्वास योग्य है। and He is faithful. ना कई बार उस देह के जीवन को समझना, To understand the body life. ना पहले कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस पत्र लिख रहा है, And here Paul is writing to Corinthians. लेकिन उसका कहने का मकसद ये है But what he wants to say is कि this, उस परमेश्वर के बारे में जानो, that understand or know about God उस देह के बारे में जानो। and His body. वो एड्रेस करता है, वैसे देह के बारे में बताता है ना, हम अलग अलग अंग है लेकिन एक है। And he talks about the body of Christ, which is church, and that we are different parts of that body. क्योंकि वो विश्वास योग्यता पर जो परमेश्वर विश्वास योग्य है उसकी सामर्थ है उसके अंदर। Because God's power is there. ना पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय, If we go to 1 Corinthians 12th chapter, ना जहाँ पे वरदानों की भी बात करता है, where he talks about gifts also. ना वहाँ पे उस जगह पे उस प्राइड की बात करता है, And here he talks about the pride. लेकिन उनके उस घमंड के अलावा उनके अंदर प्रेम ही नहीं था। But they didn't have any love apart from their pride. इसलिए पौलुस उनको उस जगह पे भी लेकर जा रहा है। And that is why Paul is taking them to that मैं place. जीवन जीने का उत्तम मार्ग तुम्हें बताता हूँ, That I will show you the best way to live. वो मार्ग जिसने मुझसे निस्वार्थ प्रेम किया, And that way which loved me without condition. वो मार्ग है प्रेम का मार्ग। And that is the way of love. परमेश्वर God, प्रेम है, God is love. परमेश्वर प्रेम है, God is love. उस प्रेम में नहीं था। And they didn't have that कुरान love. की कलीसिया उस प्रेम में नहीं जी रही, And Corinthians were not living in that ना love. उस वरदानों की धुन में है, राइट, They were lost in their gifts. ना अनैतिकता के संबंधों में जी रही है, And they had immoral relations. ना वहाँ पे प्रेम का होना, And to have love there, उसके बदले में वहाँ पे डर है, there is fear instead of that. वहाँ पे वचन होना, And to have the word there, उसके बदले में वहाँ पे असुरक्षा है, there is insecurity there instead of वहाँ that. पे अनुग्रह होना चाहिए, There should have been grace there. वहाँ पे झूठ है। And there are lies there. पौलुस उन चीजों को एड्रेस करता है पहले, And Paul addresses those things. लेकिन हम क्या सीख रहे हैं इसमें से? What are we learning out of it? हमारे जीवन में जो प्रेम है वो विश्वास योग्य है, That the love which we have is faithful. हमारे जीवन में जो वचन है वो सामर्थी है, And the word which we have is powerful in our life. हमारे जीवन में जो अनुग्रह है जो हमेशा हमारा साथ देने के लिए रेडी है, And we have
grace which will always abide with us. राइट? सुन रहे हैं Isn't it? Are you listening? ना? प्रेम होना बहुत जरूरी है। To have love is so important. वहाँ पे बोलते हैं प्रेम की व्यवस्था को पूरा करते हैं। And that is where we are fulfilling the law of love. जब आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं When you love each other, तो वो व्यवस्था को पूरा करना है। it fulfills the law. व्यवस्था चलना पालन करने से पूरी नहीं होती, A law is not completed through observing it, बल्कि जिसने व्यवस्था दी है उसके जीवन को जीने से उस व्यवस्था को हम पूरा करते but the one who has given us the law by living that kind of life is when we fulfill the हैं। दो law. बातें There are two things. ना, उसने दो ही आज्ञाएं दी। There were two commandments only which he ना, gave. तू अपने परमेश्वर से पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि से, पूरे मन से क्या कर? प्रेम कर। That you love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. और तू अपने पड़ोसी से, And you love your neighbor. तू अपने पड़ोसी से, And you love your neighbor हाँ, राइट, अपने समान से प्रेम कर। as yourself. That is amazing। And which is amazing. ना वो ग्रेस दिया है उसने। This grace has been given. ना पौलुस प्रोत्साहित करता है। And Paul encourages. इसलिए हम प्रॉब्लम्स नहीं जान रहे, That's why we don't know problems. लेकिन हम उस विश्वास योग्य परमेश्वर को समझ रहे हैं। But we can understand that faithful God. जब हम उसे समझने लगते हैं, When we start understanding, हमारे अंदर वो भूख बढ़ती है the hunger increases in us. और उसे खोजने की लालसा बढ़ती है। And we want to seek Him. फिर हम उस वचन में जाते हैं, And then we enter this वो world. वचन फिर से हमें प्रेरित करता है, And it encourages us once वो again. फिर से हमें मजबूत करता है। It inspires us and और strengthens थोड़ा us. ही इधर, And a little here, थोड़ा उधर, a little there. वो हमें मजबूत करता जाता है। It makes us strong. इसलिए हर दिन उसके साथ सीखना जरूरी है। And that is why to learn with Him every single day is और ये important. वचन भी कहता है, And that is what the word says. हम अविश्वासी भी हो, दूसरा तिमुथियुस We का may be unfaithful. 2:13, हम अविश्वासी भी हो, We may be unfaithful, वो विश्वास योग्य बना रहता but He remains faithful. है ना। क्यों बना रहता है? Why? क्यों बना रहता है? क्योंकि वो अपने आप का इनकार ही नहीं कर सकता Because He cannot deny Himself. ना, वो अपने आप का इनकार नहीं, हम इनकार कर सकते हैं, अपने आप बोल सकते हैं We can deny ourselves. हम अविश्वासी योग्य भी हो, Even if we are, अविश्वासी भी हो we may be unfaithful even then. ना। इसलिए वो उदाहरण देता है That's why in Hebrews He gives this ना, example. 12वां अध्याय 1 और 2 जो हमने पढ़ा And Hebrews 12:1 and 2 which we ना, read, जहाँ बोलते हैं गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, that we are surrounded by a cloud of belief, जो हमको घेरे हुए है, which is surrounding us. तो आओ हम रोकने वाली हर बात को, जो बाधा है, जो उलझाने वाला पाप है, उसे दूर करते हुए क्या करें? वो दौड़े जिसे धीरज से हमें दौड़ना है। Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. और एक चीज बोलता है, विश्वास का सिद्ध करता, राइट, करता और सिद्ध करता की ओर ताकते हुए। And he says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. ना, ये उलझाने वाला पाप क्या पता है? You know what is that sin which ensnares वो आपको us? चिपक जाता है It comes and sticks to you. ना, जैसा आपको उलझा देता है। It really entangles you. सोचो बहुत सारे ऐसे, राइट, रस्सियाँ आपके वो डाल दिया जाए, Just imagine that a lot of ropes have been thrown आप at you. उसको छुड़ाना है तो बहुत तकलीफ होगी If you have to come out of it, you'll have a lot of trouble coming ना। out. वो वैसा ही है, It is, sin is like वो हमसे that. चिपक जाता है It sticks to us और उलझा देता है। and it ensnares us. लेकिन बोलता है But he says here ना, उस संदेह के वातावरण से दूर होते हुए, that be away from that thing of doubt, उस अविश्वास के वातावरण से दूर होते हुए move away from that environment of unbelief, और उस उलझाने वाले पाप से दूर होते हुए and to move away from that sin which किसको easily ताकना ensnares है? us. Whom do we have to look यीशु at? मसीह को We have to look unto Jesus. ना, तभी हम वो दौड़ सकते हैं Then only can we finish, or then only can we run the ना। race. उस जीवन में प्रवेश किया है हमने And we have entered that life, और वो जीवन हमारे अंदर दिया है परमेश्वर, and God has given us that वो life, विश्वास का है। and which is of life, which is of faith. लेकिन वो पाप हमें रोकता है But that sin stops us. ना। यशाया का 14 में है,
We can see it in Isaiah 14. जो पाप का स्रोत है शैतान, The source of sin who was Satan, ना जो अविश्वास योग्य ना अविश्वास योग्यता लेकर आता है, who brings unfaithfulness. क्योंकि वो स्वयं अविश्वास योग्य है। Because he himself is unfaithful. वो हमें क्या है, संगति से ना, अगर देखा जाएगा तो चर्च से, And he moves us away from the fellowship or the church और प्रचार से, and preaching बाइबल से from the Bible. दूर लेकर जाना चाहता है। It wants to take us away from all this. हमें उस विश्वास से भरे वातावरण से दूर लेकर जाना चाहता है। And he wants to take us away from that environment which is filled with faith. वो क्या लेकर आएगा? What will he bring? अपने विचार, He will bring his own अपनी thoughts, कल्पनाएं, his own imaginations, ना लालसाएं, and those temptations, प्रलोभन लेकर आएगा, and those things which attract us, ताकि हम दूर हो जाएं। so that we move away. लेकिन जितना हम करीब जाएंगे, But the more we go closer, ना उतना हम उससे बचे रहेंगे। we will be safe from him. लेकिन हमें क्या करना है? But what do we have to do? इफिसियों का 6वां अध्याय 6वीं पंक्ति बोलता है। We have to go 16वीं to पंक्ति बोलता है। Ephesians 6:16. बोलता है विश्वास की ढाल ले लो, बोलता है That he takes the, he says, take the shield of faith ना, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, बोलता है and continue to stay strong. ना। जहाँ पे बोलता है ना, विश्वास की ढाल क्या करते हैं, वो बुझते हुए तीरों को, चलते हुए तीरों को बुझा सकती है Which will be able to quench all the fiery darts. ना, चाहे वो कल्पनाएं, वो विचार कितने भी कठोर क्यों ना हो। We don't know how strong, even if they are very strong, the thoughts and imaginations, कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, and they could be really, really very powerful. लेकिन हमारे पास ऐसे सामर्थ्य हथियार है जो उसको क्या है, गिरा सकते हैं। But we had such strong arms that we can actually topple him. सिर्फ विश्वास की ढाल के साथ लेना है, And the whole idea is to take the shield of faith ना उस विश्वास की ढाल के साथ जीना है। and to live with that shield of faith. मदर हडसन टेलर 1300 मिशनरियों ने उसके द्वारा क्या निर्णय लिया, 1300 मिशनरीज उसके द्वारा आगे बढ़े गए। And we know that Hudson Taylor influenced 1300 missionaries. ना, जहाँ पे 52 साल के उस जीवन काल में उसका चाइना में उसने वो 52 साल का उसकी सेवकाई रही। And 52 years he served in China. उसके 3 बातें थी। And there were 3 things which he said. ना, उसकी सेवकाई में परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो एक पहली बात थी। First thing was that in his ministry God was faithful. ना, और कलीसिया और जीवन की संगति थी उसके। And there was fellowship of life and churching. और तीसरी चीज, And the third thing, वो भटके हुए को प्रचार करता था। he used to preach to the lost. वो ये 3 बातें लेकर चल रहा था। And he took these 3 things. परमेश्वर विश्वास योग्य है, That God is faithful, और मैं उसकी संगति में सहभागिता में हूँ, and I am in his fellowship, और मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ। and I am preaching him. ना, ये 3 बातें लेकर चलना, And to take these 3 things ना उस संगति में बने रहे, and to continue or abide in that strength. ना परीक्षाएं आएंगी, And of course trials will come, तकलीफें आएंगी, troubles will come, लेकिन सब बदल सकता है, but everything can change. क्योंकि वो हमें परीक्षा में नहीं रहने देता। Because he won't let us remain in a trial. ना, पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 13वीं पंक्ति, वो हमें इतनी परीक्षा में नहीं गिराता कि हम सहने से बाहर हो। And we know in 1 Corinthians 10:13 that he will not tempt us more than what we can endure. वो उसमें से निकास का भी मार्ग जानता है, वो विश्वास योग्य है, बोलता है। He gives us an escape route there and a route of faith. ना विकास, ना वहाँ से निकलने का निकास का मार्ग, And there is somewhere we can escape from all this. ना यूहन्ना का 14:6 बोलता है, वो मार्ग सत्य जीवन में है। And as we know that John 14:6 says that I am the way, the truth and life. मैं तुम्हारे परीक्षाओं में विश्वास योग्य हूँ। And I am faithful in your trials also. ना, उस संगति में बने रहना, And continue to be in that fellowship. उस परीक्षा के उस बोझ को उठाने के लिए सक्षम बनाएगा। And he will make us strong to bear that weight of trial. ना, होता है मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक विश्वास योग्य हूँ। And he says I am faithful from generation to generation. ना, ओके, सो परमेश्वर विश्वास योग्य है। So God is faithful. ना, पहले में सारा एडवांस थी, And we know Sarah was barren. लेकिन वो विश्वास योग्य परमेश्वर के ना उसके उस घेरे में आ गई। But she was surrounded by a faithful God. ना, अब्राहम ने विश्वास किया और वो धर्मी गिना गया।
Abraham believed and he was considered faithful. ना, और उसके जीवन में परमेश्वर ने उस विश्वास योग्यता को दिखाया। And God showed that righteousness in his life. वह शाऊल जो पौलुस बना, And Saul became Paul. ना, परमेश्वर की एक योजना है। There is a plan of God there. परमेश्वर के उस उद्देश्य के साथ वो विश्वास योग्यता भी उसने दी है। And with his purpose he has given that faithfulness also. ना, ये कहना And to say कि मैं उस पे भरोसा करता हूँ, that I believe in him वो विश्वास योग्य है। and he is faithful. ना, उसके 7 हिस्से हैं, And there are 7 parts there. लेकिन हम बाद में जानेंगे उसको, And we will know about them later. लेकिन इस पार्ट को देखेंगे। But we will just see this, विश्वास योग्य परमेश्वर that God is faithful, जिस पे मैं निर्भर हूँ। whom I am dependent on. ना, पहले घर में बिजली चली जाती है, If there is no electricity at हम home, बिजली पे निर्भर रहते हैं, we are dependent on that लेकिन जब electricity. चली जाती है But when it goes, तो हम परमेश्वर पे निर्भर होते हैं। then we depend on God. पता है, वो मेन मोमबत्ती लगाते हैं हम लोग, We light up candles कुछ चिंता नहीं है, पसीना आ रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, and we start sweating and there are many things लेकिन हम happening. क्या याद करते हैं, तभी हमें कुछ नहीं। पहले मैंने देखा है I have observed this. कि जब सब लाइटें चली जाती है, When there is no electricity, हम कुछ नहीं करते, we don't do anything. हम बैठे रहते हैं। We just keep sitting. ना, यदि खाना बनाए तो खाना खाएंगे, And if the food is ready, then we'll have food. ना, तो बातें करते रहेंगे। Otherwise, we will talk. तभी मोबाइल में बैटरी ना हो तो है And if mobile doesn't have battery, आजकल बहुत ना, ये पावरफुल हो गया है इसका। this has become very powerful. लेकिन इससे पावरफुल परमेश्वर की विश्वास योग्यता है, But God's faithfulness is more जो powerful than हमें इस this, सारी चीजों से अलग रखती है which keeps us away from all these और things हमें मदद करती है, and helps us. मदद करती है उसके विश्वास योग्यता में जीने के लिए। And to continue to live in His faithfulness. 3 चीजें लास्ट में So 3 things. ना, परमेश्वर का उद्देश्य उसके प्रति वो विश्वास योग्य है, And God is faithful towards His purpose, रोमियो का 8:28 में कहता है, which is in Romans 8:28. उसने अपनी इच्छा के अनुसार हमें बुलाया है। That He has called us by His will. परमेश्वर सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य है, And God is faithful towards His gospel. क्योंकि वो सुसमाचार लोगों के जीवन को बदलता है, जिसने मुझे बदला। And because that gospel changes people's life, who has changed me. तीसरा, Third thing, परमेश्वर हमें स्वर्ग लेके जाने के लिए विश्वास योग्य है। and God is faithful to take us to heaven. स्वर्ग जा रहे हैं, Are we going to heaven? स्वर्ग जा रहे हैं। Are we going to heaven? दूसरा कोरिन्थियों का 5:8, 2 Corinthians 5:8. हम इस देह के अर्थ से अलग होकर प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। That when we are separated from this body, we will be with Christ. ना, वो स्वयं जिलाया गया, स्वयं जीवित हुआ, Because He Himself rose. इसलिए हम भी उसके साथ जिलाए जाएंगे। That is why we would also rise again. ये उसकी विश्वास योग्यता है। And that is His वो हमें faithfulness. बादलों पे लेने आएगा, He will come to take us on clouds. देर नहीं करेगा। And He won't delay. ना, जिनकी शादी नहीं हुई डरो मत ना, Those who are not married, don't be scared. लेकिन हाँ, जिनकी शादियाँ हो गई वो बोलते हैं जल्दी आओ। Those who are married say, come soon. नहीं, विश्वास योग्य है, राइट? परमेश्वर विश्वास He योग्य है is faithful. ना, परमेश्वर विश्वास योग्य है। God is faithful. आपको हमें जो जीवन मिला है बहुत बहुत कीमती है, And the life which we have been given is very precious. लहू से हमें छुड़ाया गया है Because we have been redeemed by that precious blood. और वो लहू हमेशा विश्वास योग्य रहेगा। And that blood will always remain faithful. इसलिए 1 जॉन And that is why 1 John, पहला यूना का 9वीं पंक्ति, 1 John 1:9. 7वीं पंक्ति, 9वीं पंक्ति, दूसरा अध्याय पहली पंक्ति। ओके, तीनों चीजें एक बात कहती है And all 3 verses say the same thing. ना, एक संगति में जो उसके लहू के द्वारा हमें शुद्ध करता है, हमें जोड़े रखता है, That He continues to join us to the fellowship through His blood. और एक वादा देता है कि जिसने सारे पापों को क्षमा कर दिया, सब पापों को, एक भी नहीं, सब And पापों को। promises that He has forgiven all our sins. लेकिन जो कोई भी वो पाप मान लेता है, But whoever confesses and accepts that he has sinned, उस क्रूस ने हमारे सारे पापों को ले लिया, that cross has taken all those sins. और उसका जीवित होना हमारे जीवन में क्या है, एक आशा लेकर आया है। And His living has brought
such a hope in our वो life. विश्वास योग्य और धर्मी है हमें सारे पापों से क्षमा करने के लिए। And He is faithful and righteous to forgive us of our sins. और तीसरी चीज And the third thing, बोलता है वो विश्वास योग्य है। that He is faithful. जब हम विश्वासी जीवन में जी रहे होते हैं When we are living in that believer's life, ना, बोलते पाप मत करो, लेकिन जब पाप हो जाता है तो हमारे पास एक एडवोकेट है so He says that do not sin, but if you sin, then we have an advocate जो विश्वास योग्य है, who is faithful, वो धर्मी यीशु मसीह है, and He is righteous जो Jesus हमारे लिए Christ, खड़ा रहता है, who stands for us. वो हमसे प्रेम करता है, He loves वो us, हमें कभी नहीं छोड़ता, and He will never leave us. वो दयालु है, He is merciful, उसकी भलाई सदा की है, and His goodness is forever. ना वो हमेशा हमारे साथ वैसा ही चाहता है। And He always wants things to be with us. आमीन। Amen. आमीन। हम प्रार्थना करते Let's pray. हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। Father God, we thank You for giving us this time, O Lord. आपने ये जीवन दिया है You have given us this life, और तू इस जीवन का करता है, and You are the author of this life, और Lord. आपका विश्वास हमारे पास है, And Your faith is with us, O Lord. वो हमारे अंदर जीता है। And it lives in us, O Lord. और जब हम आपको देखते हैं, And when we look at You, O Lord, ये पिता तेरे पुत्र को जब हम देखते हैं and when we look at Your Son, O Lord, और उस पवित्र आत्मा की सहायता से हम उस जगह पे भी आते हैं and we come through the Holy Spirit to that place, O Lord, और विश्वास में जीते हैं and we live in faith, और देख पाते हैं and we are able to see तू कितना विश्वास योग्य है। that how faithful You are, O Lord. धन्यवाद करते हैं We परमेश्वर thank You, Lord, इन तीनों बातों के लिए। for all these things, O तेरा Lord. उद्देश्य हमारे जीवन में है, Father, Your purpose is in our उस lives, सुसमाचार ने हमारे जीवन को बदला है and that gospel has changed our और वो life, प्रेम सदा हमारे साथ बना रहता है। and that love continues to live with us. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। We thank You, Lord. यदि कोई यहाँ पर है, If there is someone here वो चाहता है कि यीशु मसीह पे विश्वास करना, and wants to believe in Jesus यदि वो चाहता है कि यीशु मसीह को अपनाना, and wants to receive Jesus Christ, वो आपसे इतना प्रेम करता है because He loves you so कि much वो 2022 साल पहले इस दुनिया में आया, that He came to this world 2022 years ago, उसने सबके जीवन के लिए अपना प्राण दे दिया। and He gave His life for all of us, all our souls, हम सभी के पापों को उसने क्रूस पे ले लिया। and He took all our sins on the cross, वो क्रूस इतना पवित्र है, and that cross is so holy, उसमें जो लहू बहा है, and the blood which is shed on it, वो लहू आपके सारे पापों को क्षमा कर सकता है। and that blood can forgive all your sins. केवल एक विश्वास से आपके पास आने की जरूरत है, You just have to come with faith, उस विश्वास से आने की जरूरत है। and you just have to come with faith यीशु मैं आप पे विश्वास करता that हूँ, Jesus Christ, I believe in You. तूने मेरे सारे पापों को क्षमा You किया have forgiven all my sins, और तू जीवित परमेश्वर है। and You are a living God. वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा परमेश्वर है। He died and He was crucified. He was crucified and died, and He rose again on the third day. सिर्फ उस पे ये विश्वास करना, Just believe on Him. यीशु मैं आप पे विश्वास करता Jesus, I believe in You. हूँ और ये विश्वास आपको आनंद जीवन देगा। And this belief will give you eternal life. धन्यवाद करते हैं, We thank You. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर God, we thank You, इस Lord, जीवन के लिए for this life, और Lord, हर एक के लिए परमेश्वर, and for each one of us, आपकी विश्वास योग्यता के लिए and for Your faithfulness, यीशु Lord. मसीह के नाम से We pray in Jesus' name. आमेन। Amen. आमेन। थैंक यू। तो हमारे बीच में नेहा भी है So Neha is there among us today. ना, उसका हम स्वागत करते हैं। So we want to welcome her. शिप होगी। लेकिन आज एक कुछ खास बात है But there is something special today, और उसके साथ हम एड करेंगे। and that is what we will do this. पास्टर बबलू और ज्योति Pastor Bablu and Jyoti और अनुग्रह and Anugrah यहाँ पे आ सकते हैं can come forward ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें। so that we can pray for them. बहुत खुशी है आप लोगों को, So we are happy इस जगह से एक मिशन की शुरुआत हो रही है। that a mission is starting from here. यस, मिशन तो शुरू है। Yes, of course, the mission is ongoing. हम आउटरीच करते हैं
We do outreaches, उल्वे में चर्च है, and there is a church in Ulve, राइट, खारघर में आउटरीच होती है, and there are outreaches in Kharghar, पनवेल में आउटरीच होती है, there are outreaches in Panvel. राइट, हर जगह पे शुरू है। In these places it's ongoing, लेकिन ये पहला हिस्सा है but this is the first time कि यहाँ से बाहर ना किसी को भेजा जा रहा है, that we are sending someone किसी को far from मतलब this पास्टर place. बबलू को भेजा जा रहा है। And this means Pastor Pablo. तो आप सभी उनको प्रार्थना में रखिएगा Keep him in your prayers. और हम सभी मिलके उनके लिए प्रार्थना करें कि ना यहाँ से जब वो जा रहे हैं तो हम सभी खड़े हो सकते हैं। So we can all stand and we can pray for him. परमेश्वर, God, परमेश्वर विश्वास for Bilaspur he is faithful. राइट, सो प्रार्थना करते हैं। Let's pray. सो अद्भुत प्रभु के दास है। He is an amazing man of God. मुझे खुशी होती है जब इन्होंने गवाही दी थी, And I was so happy when he gave his testimony. तो जब पहला ट्रैक्स मिला तो मेरे हाथ से इनको मिला था। And the first track which he received was from my hands. प्रभु का धन्यवाद हो, मैं कुछ बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, So it is God's work. I am not saying लेकिन anything. आज भेजा जा रहा है। But he is being sent today. ये प्रभु की योजना है It is God's plan और हमारा विश्वास है, and our faith. क्योंकि वो विश्वास योग्य है। Because he is faithful. तो आप सभी हाथ इनकी ओर बढ़ा सकते हैं So you can all extend your hands और हम इनको प्रार्थना करते हैं। and we will pray. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं Father Lord, we thank you इस परिवार के लिए for this family जो आपने चुना है। पिता whom परमेश्वर, you have chosen. पास्टर बबलू और ज्योति और अनुग्रह के लिए, Father God, for Pastor Bablu, Jyoti and Anugrah, इनके विश्वास योग्य जीवन के लिए and for their faithful lives, O Lord. और इनके विश्वास योग्य जीवन के साथ जो इन्होंने सेवकाई की है And with faithfulness which they have served, O Lord. और उसी का फल है And this is the reward, O Lord, कि आप पिता परमेश्वर ने भेज रहे हो। that you are sending them, O Lord. हमारे पास केवल वो अधिकार है, Father, we have only this much of authority, लेकिन वो विश्वास से हम भेज रहे हैं। but we are sending with that faith, O हम Lord. आप पे भरोसा रखते हैं We believe in you, O Lord. We और trust you. उस पवित्र आत्मा की सामर्थ में And on the spirit, on the power of the Holy Spirit, O Lord. इनको यहाँ से अगुवाई करना प्रभु जी। Father, lead them from here जब वो onwards. बिलासपुर के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, As they go to Bilaspur. वहाँ पे वो होने से पहले आप वहाँ पे उपस्थित रहना प्रभु जी। And be there, O Lord. Let your presence be there before even they reach. आपकी अगुवाई रहे And your leading will be there, O और Lord. आपकी बुद्धिमत्ता रहे, And your wisdom will be there, O Lord. आपका सामर्थ रहे प्रभु And जी। your power, O Lord, will be और there. उनके जीवनों को आप संभालना प्रभु And जी। Father, you take care of their lives, O और Lord. खास करके ज्योति के लिए मांगते पिता And परमेश्वर, especially for Jyoti, we ask, O कि Lord. उसकी सेहत को भी संभालना वहाँ पे And प्रभु जी। Father, look after her health, O Lord. यस लॉर्ड प्रभु जी, मांगते पिता परमेश्वर And we ask, O Lord. और पास्टर बबलू को विजडम देना And Father, give wisdom to Pastor Pablo और also. वहाँ पे जो कलीसिया की अगुवाई होगी, And Father, lead the fellowship there or the church there. वहाँ पे जो लोग होंगे प्रभु जी, And the people who will be there. उनके मध्य में एक टीम रेज अप करना प्रभु And जी। raise a team there, O Lord. यस लॉर्ड प्रभु जी, आपने वहाँ पे रखा है कुछ लोगों को And you have kept some people there, O Lord. और वो लोग उनके साथ साथ बड़े हो And they may grow with him, O Lord. सिद्धांतों में और मजबूत शिक्षा में प्रभु जी, In doctrine and in soundness of doctrine, O Lord. और उस मजबूत अनुग्रह में बढ़े, And they may increase in grace, O Lord. उस आपके महान अनुग्रह में कलीसिया बढ़ सके प्रभु जी। And in your grace, O Lord, this church may grow, O Lord. हम आपके उपस्थिति में आपकी मर्जी में इन्हें सौंपते हैं प्रभु जी। And we submit them into your hands, O Lord. कि Your will, O Lord. आपकी सहायता के साथ प्रभु जी भेजे जाए। So that they will be sent by your support and help, O Lord. धन्यवाद करते हैं, We thank you. Thank सारी you. महिमा आपको देते हैं We give you all glory, O Lord. और सारी चीजों को प्रभु आपके द्वारा पूरा करेंगे इनके And, जीवन में। and Father, in this life, everything may be fulfilled through you, O Lord. और बिलासपुर को आपके हाथों में सौंपते हैं And we submit Bilaspur into your और hands. आपके लोगों को
and your people also. जो यहाँ से भी अगर जाना चाहता है, And those even who want to go from here. प्रभु जी उन्हें भी आप अगुवाई करना, And you lead them also, Lord. ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, Not by might, not by power, but by your Spirit, O Lord. तेरी आत्मा के द्वारा। By your Spirit, O Lord. धन्यवाद कर We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से, We pray in Jesus' name. आमेन Amen. आमेन आमेन। थैंक यू आप सभी को। अच्छा समय था। So we thank you all, and it was a lovely time. यहाँ पे बड़े, यहाँ पे बाइबल क्लास के सब कुछ अब यहाँ से जा रहे हैं। And so I grew here, and now I'm going. आप लोग अभी आते रहिएगा। And you continue to come. अभी हम आपके घर पे आते थे, कॉल करते थे, अभी आप लोग कॉल किए और आते रहो। So earlier we used to give you a call and come to your house. Now you come to our house. वेलकम है आप सभी का। So all of you are अपने welcome. प्रार्थनाओं में याद रखिए। And remember us in your prayers. कोई टीम मिले And if there's a team, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर का काम बढ़े that we may make a team, and God will make a team there, और परमेश्वर का कार्य आगे बढ़े। and God's work may proceed. थैंक यू। Thank you.